السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی اللہ کا شکر ہے آپ سب کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں۔ اور یہ 10:30 کا ٹائم ہے اور آج اتنی زیادہ دھند تھی، میں نے سوچا کہ آج میں اپنے ولاگ کا سٹارٹ اوپر چھت سے جا کے کروں گی۔ میں نے کبھی بھی چھت سے اپنے ولاگ کا سٹارٹ نہیں کیا، تو آج سوچا کہ آج دھند سے ہی اپنے ولاگ کا سٹارٹ کرتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ اوپر کتنی زیادہ دھند ہے، کیونکہ نیچے اپنے کمرے سے تو دیکھتی ہوں تو دھند بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ بچوں کے کپڑے تھے، اور جیسے ہی میں چھت پہ تو میں تو شوق میں رہ گئی، کتنی زیادہ دھند اور ڈیو اتنی زیادہ تھی۔ پہلے تو میں سمجھی کہ بارش ہوئی ہے، لیکن بارش نہیں تھی، یہ ساری اتنی زیادہ ڈیو تھی، سارا چھت گیلا تھا، فائبر پہ بھی پانی کھڑا ہوا تھا۔ تو یہ دیکھیں پانی کتنا زیادہ ہے۔ تو آپ سب بتائیں، آپ لوگوں کی سائڈ پہ بھی ایسی ہی سردی ہے؟ ہم لوگوں کی سائڈ پہ تو بس جم جانے والی سردی ہے، بہت زیادہ یخ بنی ہوئی ہے۔ تو بس اللہ پاک ہم لوگوں پہ رحم فرمائے اور تھوڑی بارش ہو تاکہ سردی کا بھی زور تھوڑا کم ہو اور تھوڑی فوق بھی کم ہو۔ تو آج کے اپنے ولاگ کا سٹارٹ میں نے سوچا کہ میں چھت پہ جا کے کروں گی۔ میں نیچے آٹا گوندھ رہی تھی، اور جیسے میں نے آٹا گوندا ہے میرے تو ہاتھ جم گئے تھے، یقین مانے اتنا ٹھنڈا پانی تھا کہ بالکل آٹا گوندا ہی نہیں جا رہا تھا۔ آٹا گوندھ کے سیدھے میں چھت پہ آ گئی تھی، میں نے کہا چلے یہ آٹا تھوڑی سی اپنی جگہ پکڑے گا تو میں اتنی دیر میں چھت سے گھوم کے آ جاؤں گی، لیکن فٹافٹ دروازہ بند کیا ہے کہ ٹھنڈی یخ ہوا تھی سیدھا سر میں گھسی ہے۔ اور یہ بچوں کے کپڑے پڑے ہوئے تھے جو کہ میں نے ایک دن پہلے ہی واش کر کے ادھر ہی پھیلا دیتی ہوں تاکہ تھوڑی بہت ہوا سے سوکھ جائے، جب دھوپ نکلے تو پھر اس کے بعد دھوپ پہ ڈال دیتی ہوں۔ نیچے جیسے ہی آئی ہوں 10-15 منٹ بعد پھر میں نے پراٹھے بنانا شروع کر دیے تھے، تازے آٹے کے پراٹھے، اور اسپیشلی چکی کا جو آٹا ہوتا ہے اس کے پراٹھے بہت مزے کے بنتے ہیں، کرسپی بھی ہوتے ہیں اور آٹے کی ایک الگ سے میٹھی سی لذت ہوتی ہے۔ تو یہ چکی کا آٹا تھا اور گھر کا آٹا تھا، تو بہت مزے کے پراٹھے بن رہے تھے۔ میرے ہسبینڈ بھی کہہ رہے تھے کہ آج تو پراٹھے بہت زیادہ مزے کے بنے ہیں، جیسے موسم مزے کے ایسے پراٹھے بھی مزے کے ہیں۔ آج کا میرا بہت زیادہ دل کر رہا تھا کہ چنے بنے ہوئے ہیں تو حلوہ پوڑی بناتی ہوں، لیکن اتنی زیادہ میرے سے نہیں کی جا رہی تھی کہ اتنا زیادہ کون محنت کرے۔ چلے چھوڑے جی، آج میں ایسا کرتی ہوں کہ انڈا پراٹھا ہی بناتی ہوں جیسے روٹین میں بنتا ہے، پھر کسی دن ایسا کروں گی کہ حلوہ پوڑی بناؤں گی۔ تو یہ کہ میں پراٹھے وغیرہ بنا رہی تھی اور اس کے بعد بچے بھی ساتھ میں جا کے تھے، ساتھ ساتھ انہیں بھی چینج وغیرہ کر رہی تھی، کیونکہ جب میں ناشتہ بنا رہی ہوتی اسی ٹائم میں میرے بچے جاگتے ہیں، تو میری اتنی ایک دم سے ایکٹک روٹین ہو جاتی ہے۔ اور ساتھ میں بچوں کو بھی ناشتہ کروا رہی تھی، جب بڑے کھا رہے ہوتے ہیں تو ساتھ میں بچوں کو بھی کرواؤ ناشتہ، تو وہ اچھے سے ناشتہ کر لیتے ہیں۔ تو ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد میرے ہسبینڈ چلے گئے تھے آفس، تو بچے رو رہے تھے، میں نے کہا چلے آئیں آج باہر کی صفائی کرتے ہیں، کافی دنوں سے باہر کی صفائی نہیں کی تھی۔ کچھ دن پہلے ہی میں نے موپنگ کی تھی، لیکن پھر اتنی زیادہ ڈسٹ ہوتی ہے باہر سے، اتنی زیادہ ریت آتی ہے کہ اتنا گند ہوتا ہے کہ میں نے سوچا کہ آج ایسا کرتی ہوں، پہلے باہر کی صاف صفائی کر لیتی ہوں اور اس کے بعد کمرے کی کر لوں گی۔ تو ڈرائنگ روم سے اور ہال سے میں نے ساری صفائی کر لی تھی، اب ایک بیڈ روم رہتا تھا تو میں نے سوچا بیڈ روم کی بعد میں کروں گی، پہلے ایسا کرتی ہوں تھوڑے سے بچوں کا بھی دل بہل جائے گا۔ کب سے بچے کمرے میں باندھیں اور خود بھی کمرے میں باندھوں تو دل کرتا ہے کہ کہیں باہر جاؤں، لیکن آپ کی بہن باہر جا نہیں سکتی، ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو ماں ہی ایک ہوتی ہے کہ جو کہ بچوں کے لیے قربانی دیتی ہے، باپ بیچارہ تو باہر گرمی ہو سردی ہو ٹھنڈ ہو جو بھی ہو انہوں نے تو جاب پہ لازمی جانا ہوتا ہے۔ تو میرا آج کل بہت زیادہ دل کر رہا تھا کہ میں بھی باہر جاؤں، لیکن جب بھی جانے کا سوچتی ہوں تو اسی دن ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، پھر کہتی چلو جی خیر کوئی بات نہیں، گھر میں ہی رہتی ہوں، جس دن دھوپ ہوگی موسم اچھا ہوگا اس دن باہر جاؤں گی۔ بچے بھی گھر میں بیٹھ کے تھک کے خود بھی یقین مانے اتنی زیادہ تنگ ہو گئی ہوں، لیکن کیا کروں، بچوں کے لیے قربانی دینی پڑتی، پھر مائیں قربانیاں نہ دیں تو کون دے؟ جب مائیں اپنی عیاشیوں کی زندگی اپنی لگژری لائف کو دیکھے تو پھر بچوں کا کون سوچے گا؟ بس اللہ پاک ہمیں بھی ہدایت دے اور ہماری بھی لائف میں آسانیاں پیدا کرے۔ میری بیٹی بہت زیادہ احساس ہے، وہ اتنی زیادہ سینسٹیو، میں جو کام کرتی ہوں وہ مجھے دیکھتی ہے اور مجھے پک کرتی ہے۔ تو میں بھی کبھی کبھار سوچتی ہوتی ہوں کہ بیٹیاں ہمیشہ اپنی ماں کو ہی کاپی کرتی ہے، میں بھی اپنی ماں کو بہت زیادہ کاپی کرتی تھی، حتیٰ کہ میری مدر کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو میں اس ٹائم اس ایج میں تھی کہ اتنا نہیں خاص پتہ تھا، لیکن پھر بھی اپنی امی کی ہر بات یاد ہے، کیسے میری امی کام کرتی تھی۔ لاسٹ ولاگ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کڑھائی کرنا ہے، اس ٹائم میں اتنی چھوٹی تھی کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ سوئی دھاگا کیسے پکڑتے ہیں، تقریباً میری ایج ہوگی 6-7-8 سال۔
मतलब अंडर 10 ईयर ही मैं होंगी, लेकिन मुझे फिर भी याद है कि मेरी अम्मी मेरी बहन कढ़ाइयाँ वगैरह कैसे करती थी, सिलाई कैसे करती थी। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी को, बहन को देखा देखी पे मुझे सिलाई करना भी आती है अल्हम्दुलिल्लाह, और कढ़ाई भी मुझे आती है, क्योंकि मेरी अम्मी को हर तरह की कढ़ाइयाँ, सिलाई वगैरह सब कुछ आता था, कुरेशिये का काम। तो फ़ातिमा देख रही थी कि मैंने मोबाइल सेट किया हुआ था, तो वो मोबाइल में देख देख के अपने आप को खुश हो रही थी कि, और साथ साथ में बच्चों को भी देख रही थी कि कहीं बेटा ऊपर सीढ़ियों पे ना चला जाए। वो बहुत ज़्यादा नोटी है, ये डरती है सीढ़ियों पे जाने से या इस तरह की कोई उल्टी सीधी शरारत नहीं करती, लेकिन वो हर लड़का है ना, वो हर तरह की उल्टी शरारत करता है। तो मुझे उसका डर रहता है कि कहीं वो सीढ़ियों पे ना चला जाए, गिर ना जाए, या कहीं बिजली वगैरह के बोर्ड में हाथ ना डाल ले। तो बाहर की सफाई करने के बाद मैं कमरे में आ गई थी। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो पानी मैंने थोड़ा सा गर्म किया क्योंकि मैंने दवाई लेनी थी। काफ़ी टाइम हो गया मैं दवाइयाँ ले लेके, अभी तो मैं तंग आ गई, मेरा दिल करता है मैं दवाइयाँ फेंक दूँ, लेकिन क्या करूँ। शुक्र है अल्लाह पाक का कि बस गाड़ी चल रही है। दवाइयों के बलबूते पे सही, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि बच्चों को संभाल लेती हूँ, घर के काम वगैरह कर लेती हूँ, यही मेरे लिए काफ़ी है। तो बस आजकल लाइफ यही है कि आप देखें 7-8 गोलियाँ, कोई दर्द की, कोई किस चीज़ की, कोई किस चीज़ की, तो ये सारी गोलियाँ अब मैंने लेनी है। तो उसके बाद फिर मैंने कमरे की साफ़ सफाई करनी थी। कमरे ने तो आज मुझे बहुत ज़्यादा थका दिया था। ये बच्चों के जो रात के कपड़े होते हैं, ये मैं इधर ये ड्रॉर में रख लेती हूँ ताकि मुझे दूसरे कमरे में जाना ना पड़े, क्योंकि कपड़ों की अलमारी तो दूसरे कमरे में पड़ी हुई है। तो जो ज़रूरत की चीज़ें होती है बच्चों की, वो मैं थोड़ी सी इसी कमरे में रख लेती हूँ ताकि मुझे दूसरे कमरे में बार बार ना जाना पड़े सर्दी में। तो बेड मैंने बना लिया था। सबसे पहले मैं बेड बना लेती हूँ, क्योंकि आजकल तो बेड पे रज़ाई, कंबल और बेड शीट को चेंज करो तो बहुत ज़्यादा देर लगती है बेड आजकल बेडरूम को साफ़ करने में। तो सबसे पहले बेड को साफ़ किया है, फिर इसके बाद ड्रॉर वगैरह साफ़ किए, क्योंकि और आज इतना ज़्यादा काम नहीं था, सारी साफ़ सफाई कर ली थी। और मैंने सोचा कि बेडरूम की डीप क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि मेरे कमरे में सेम बहुत ज़्यादा है। एक इस जिस साइड पे मेरा ड्रेसिंग पड़ा हुआ है, इसी दीवार में सेम है, तो फिर वो कमरे में से एक मैसी मैसी स्मेल भी आती है। और उसके अलावा जी का ये जो ड्रेसिंग है, ये भी सारा पहले वाइट होता है, वाइट होने के बाद सारा ग्रीन्स हो जाता है। तो मैं इसकी बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। मैं कहती हूँ कब गर्मियाँ आएंगी, क्योंकि सर्दियों में हर चीज़ ऐसी सेम वाली होती है कि बंदा कहता है कि क्या करे। तो ये सारे वाइट फर्नीचर के जितनी ज़्यादा केयर करो उतनी ही काम है। तो मैं इसके सारे फूल बूटे डेली तकरीबन मैं साफ़ करती हूँ, क्योंकि इधर मैं दूध वगैरह रखती हूँ बच्चों का। तो ये इसकी मैंने शीट एक दिन पहले ही वॉश की थी। शीट में तकरीबन हफ्ते में 1-2 दफ़ा लाजमी वॉश करती हूँ। ऊपर दूध वगैरह गिर जाए तो वो फिर गंदी सी स्मेल आती रहती है कमरे में से। तो अब सोच रही हूँ कि बाकी चीज़ें भी चेंज करूँगी तो साथ में शीट भी चेंज करती हूँ, क्योंकि शीट अब थोड़ी थोड़ी फटना शुरू हो गई है। तो अल्लाह का शुक्र है इतना 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 कमरा तो साफ़ हो गया था, लेकिन मैं समझ रही थी इतना कमरा साफ़ हो गया, अब आगे इतना ज़्यादा गंद था कि नीचे ये जो ड्रेसिंग के सारे दराज वगैरह मैंने निकाले हैं साइड टेबल के, क्योंकि इसके अंदर सारी वो सेम सी थी, ग्रीन कलर की फफूंदी आई हुई थी। तो मुझे इस कमरे ने इतना थकाया था कि मैं उठ भी नहीं सकती थी, इतनी कमर में पेन स्टार्ट हो गया था, क्योंकि इतना हार्ड वर्किंग काम था। मैं सोच रही थी मेरा कमरा है बस थोड़ा सा है, ख़त्म हो जाएगा काम, लेकिन इतना ज़्यादा गंद बना हुआ था। वो तो चीज़ें मैंने रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि लाइट चली गई थी। आजकल लाइट का बहुत ज़्यादा इशू है, जितनी ज़्यादा सर्दी है उतने ज़्यादा गैस भी नहीं है, और उतनी ही लाइट भी जा रही है। अल्लाह का शुक्र है ये सर्दियाँ हैं, गर्मियाँ होती हैं इतनी लाइट जाती है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं। तो ये देखें, ये ड्रेसिंग के पीछे ये वाइट वाइट सी फफूंदी है, ये इसके बाद ग्रीन हो जाएगी। ये मैं एक दिन छोड़ के एक दिन लाजमी साफ़ करती हूँ। तो नीचे से इसके सारे दराज वगैरह भी मैंने निकाले हैं। आप में से किसी को इसका कोई सलूशन पता हो तो प्लीज़ मेरे साथ लाजमी डिस्कस कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे करना चाहें तो इंस्टाग्राम का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, अदरवाइज़ आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि इसका मैं क्या हल करूँ। मैं इसकी वजह से इतनी ज़्यादा परेशान हूँ, मैं कहती हूँ मेरा फर्नीचर ख़राब हो जाएगा इसकी वजह से। तकरीबन मैं हर दूसरे तीसरे दिन इसकी ऐसी एक डीप क्लीनिंग करती हूँ, सारे दराज वगैरह निकाल के फिर उन दराज को साफ़ करती हूँ। धूप तो इतनी ज़्यादा होती नहीं, और घर भी बंद है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं इसको बाहर धूप पे रखूँ, क्योंकि सारा घर बंद है। तो ये सारी साफ़ सफाई कर ली थी। फिर इसके बाद ये एक विंडो है, इधर विंडो में से सारी ड्यू होती है, तो कर्टन से लग के फिर सारी इसी दीवार में सेम बहुत ज़्यादा, ये देखिए कितनी ज़्यादा ठंड होती है। तो ये डबल विंडो है, और इसके बावजूद भी सारी ओस वगैरह सारी अंदर कमरे के अंदर वाले शीशे में आई हुई थी। तो ये मैं डेली साफ़ करती हूँ। कर्टन भी मैंने उस दिन वॉश किए। मैंने कहा चलो अब थोड़ी सी ये फर्नीचर को फफूंदी लगना कम हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद
कि एक शीशा मैंने साफ़ कर लिया था विंडो का, रेलिंग वाली विंडो है तो अब दूसरा शीशा इसका रह गया था। तो इसके बाद फिर ये घड़ी कब से मेरी ख़राब हुई, इसमें सेल ख़त्म था तो मेरे पास सेल ही नहीं था कि मैं इसमें सेल डालूं। तो आज मैंने ये घड़ी उतारी है, इसमें से सेल डाला है, उसको भी साफ़ किया है। बहुत ज़्यादा गंद बना हुआ था, जितना बंदा हम लोग काम करते करते थक जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा नेक्स्ट डे उतना ही काम होता है जितना पहले दिन हम लोगों ने किया होता है, बल्कि उससे भी डबल होता है। ये हम लोग ये समझते हैं कि चले एक दिन साफ़ सफाई कर ली, अब दूसरे दिन काम कम होगा, लेकिन जो करने वाले होते हैं उनका काम कभी भी ख़त्म नहीं होता। मेरा तो पूरा दिन ही ऐसे ही कामों में, साफ़ सफाई में, बच्चों को टेक केयर करने में सारा दिन निकल जाता है। इतना नहीं पता होता है कब सुबह हुई है, कब शाम हुई है, कब दोपहर हुई है। तो इसके हम लोगों के काम मरते दम तक ही ख़त्म नहीं होंगे। बस अल्लाह पाक हमारी मदद करे और हम लोगों पे अल्लाह पाक रहम फरमाए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे, मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए स्पेशल दुआ किया करें। अल्लाह पाक मेरी भी परेशानियां ख़त्म करे। आजकल हर बंदा ही अपनी अपनी परेशानी में मुब्तला है। तो सारा काम वगैरह कंप्लीट हो गया था। अब फर्नीचर की थोड़ी बहुत डस्टिंग रह गई थी कि जो मैंने ड्रॉर वगैरह साफ़ किए थे वो थोड़ी बहुत डस्ट आई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत ये भी डस्टिंग वगैरह कंप्लीट कर लूँ। अब सिर्फ एक झाड़ू पोछा रहता था, अब वो करना है। तो बहुत ज़्यादा आज थक चुकी थी। पहले ये समझ रही थी कि सिर्फ यही एक कमरा है, चलो जी साफ़ हो जाएगा, इतना ज़्यादा काम नहीं है। लेकिन ये ड्रॉर वगैरह ना, तो जो ड्रेसिंग के ड्रॉर थे वो मैंने साफ़ किए, तो बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी। इसके बाद फिर छत पे आ गई थी, थोड़ा बहुत रेस्ट किया, बच्चों को सुलाया है। तो आज थोड़ी धूप थी तो जो बच्चों के कपड़े थे वो लेके ऊपर आ गई थी, लेने के लिए आई हूँ कि ये 2-3 दिन से कपड़े ड्राई हो रहे हैं। कोई पंखे पे मैंने किए हैं, कोई धूप पे। तो अब इन्हें नीचे जाके कुछ जो बहुत ज़्यादा सूख गए हैं तो उन्हें तय करके रखूँगी, बाकी कपड़ों को फिर इस्त्री से मैं सुखा के रखूँगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बच्चों के, छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं तो वो कपड़े भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो डेली बेसिस पे बेशक वॉश करो, लेकिन ड्राई होने में आजकल बहुत ज़्यादा मसला है। आजकल तो ड्यू और फोग इतनी ज़्यादा है, ठंड से कपड़े सूखते ही नहीं हैं। तो मैं तो आजकल यही कोशिश कर रही हूँ कि डेली बेसिस पे बच्चों के कपड़े वॉश करूँ। तो नीचे लेके आई हूँ बच्चों के कपड़े। साथ में जैसे ही बच्चे सो रहे थे सॉरी टू से, बच्चे सो रहे थे तो मैं बच्चों के कपड़े प्रेस कर के रख रही हूँ। ऐसे बच्चों के कपड़े ये सारे मैंने प्रेस कर लिए थे। ठंडे ठंडे होते हैं, थोड़े बहुत गीले होते हैं, तो ये अंदर से बाहर से मैं अच्छी तरह प्रेस करके रख लेती हूँ। वैसे तो सर्दियों के कपड़े मैंने कभी भी प्रेस नहीं किए, लेकिन आजकल ठंड बहुत ज़्यादा है तो बच्चों के कपड़े कहती हूँ कि कहीं से ठंड ना लग जाए। या माँ ही हूँ, माँ का एक दिल है, कहती हूँ कि कहीं ना ठंड ना लग जाए, कहीं ना बीमार न हो जाएं। तो बेहतर यही कि मैं बच्चों की पहले ही टेक केयर कर लूँ। तो बीमारी तो अल्लाह ताला की तरफ से आती है, लेकिन इंसान अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कोशिश करता है कि मेरे बच्चे बच जाएं, खुद बच जाऊँ। तो अपने ऊपर तो बंदा बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अपनी औलाद के ऊपर बंदा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। मेरी हिम्मत हो ना हो, मैं अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा टेक केयर करती हूँ कि कहीं मैं तो खैर बीमार हूँ, मेरे बच्चे ना बीमार हों।